to complete, we are going to complete the marketing strategies in the different stages of product life cycle. See, we already understand that what are the situation of the product, what is the situation in product life cycle of the product, what is the situation of the company in the introduction stage, in the growth stage, maturity, and finally in the decline stage. So how, what kind of strategies, what kind of ways the company can be used? Company can be used for what? For rectify the situation of the product. If every company is basically use the dynamic approach. Why? Because company required, according to demand, the products required to be modified or changed all the time, right? If you want to sustain in the market, what we have to do, we have to add on something in the product, or either we have to introduce the new product in the market, right? And we are able to see that it is going on in the electronics company like the Samsung. Always the new models or the new product is introduced in the market. The same situation is with the mobile phones, which I already told you. So what are the various marketing strategy the company should adopt in the case of the product life cycle? In every stage I am going to elaborate it, right? अब जैसे मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह के लिए जो बताया था, आपको 4 P's मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में 4 P's के बारे में बताया था, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. So if you want to understand it once again, I am just telling you about some market modification and I am going to tell it in the elaborative form. यानी एक तरीके से मैं आपको elaborative form में ये चीजें बताऊंगी, क्योंकि शॉर्टकट में तो करवा दिया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे से और बताऊंगी. Then we'll start with the pricing. What is the meaning of price? What is the meaning of pricing? And what are the various factors which affecting the pricing in the company? So we are going to discuss about all these topics. In short, I am going to start the new chapter, chapter number 4. Okay, so let's start with product life cycle. Product life cycle, what is the strategy and what kind of things the company can do from their side, take care for improvement. So the first one is, if we'll talk about the marketing strategies for the introduction stage, I am making one table here. Just see it very carefully. Okay, so in the first stage introduction, I told you that the company have option that either they can use the penetration pricing strategy, penetration pricing scheme, or either they can use the skimming pricing strategy. So in both the situation, what will be happen that in the penetration pricing strategy, we are keeping the price of the product low at the time of introduction. यानी जब प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, तो उस टाइम पे हम प्रोडक्ट का प्राइस को क्या रखेंगे, लो रखेंगे मार्केट में. और आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से क्या होगा, दैट इज हेल्पफुल फॉर द मार्केट पेनिट्रेशन. इट मींस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. So here I guess ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा. व्हाट इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, हमारा मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो. So this is the main theme or main aim behind the company to using such kind of pricing strategy, right? But if I am talking about the skimming pricing, in this situation, the company is going to put, or they are going to basically take high price of the product in the initial stage. This I am talking about in the introduction, यानी कि जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस समय हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखते हैं, या तो प्रोडक्ट का प्राइस हम लो रखेंगे या तो प्रोडक्ट का प्राइस हम हाई रखेंगे. In the scheming pricing strategy, where we are putting the price of the product high, we are taking high price. And here what is the aim of the company? The aim of the company is not market penetration, or they want more and more market. उनको मार्केट बहुत ज्यादा चाहिए, शेयर बहुत ज्यादा चाहिए, उनको कंज्यूमर बहुत ज्यादा चाहिए, ये इनका एम नहीं होता है. दे आर फोकसिंग ऑन द टारगेट कंज्यूमर. इनको बस टारगेट कंज्यूमर चाहिए, वैसे कंज्यूमर हु आर रेडी टू पे द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट के हाई प्राइस को देने के लिए वो रेडी हो. हाई प्राइस को देने के लिए कौन रेडी हो, कंज्यूमर्स रेडी हो. ठीक है. और इनका मेन एम होता है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट अर्न करना, यानी जितना ज्यादा हो मार्जिन उसी समय इसको कमा लेना. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखी है तो लास्ट तक उसका प्रोडक्ट का प्राइस हाई ही रहेगा, ऐसा नहीं है. बट आई एम जस्ट टेलिंग इन द इंट्रोडक्शन स्टेज व्हाट सिचुएशन, व्हाट वी कैन डू फॉर द प्राइसिंग. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्ट का प्राइस को लो रखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, जैसे एग्जांपल में वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जस्ट टेक इट एग्जांपल ऑफ चिप्स.
अब हम जब चिप्स को लेकर आए तो हमने इसका प्राइस कंपैरेटिवली लो रखा, या जो भी हम पहले जैसे वो प्रोडक्ट अगर ऐसा बेच रहे थे तो उसी के अराउंड हमने इस प्रोडक्ट का प्राइस रखा, ठीक है। वी आर बेसिकली पुटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लो इन द स्टार्टिंग स्टेज, दिस इज अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट. But here we can take the example of mobile phone. We are able to see that whenever there is technological advancement in any of the mobile phone, the new model is introduced in the market, the price of the product is high. ठीक है, so just imagine we are here with the mobile phone with the new technology and we are basically putting the price of the product high. So it is known as skimming pricing strategy, and in the penetration pricing strategy the product price will be low. So what is penetration pricing and skimming pricing? I guess ये दोनों सबको clear होगा. Everyone, this point is clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay, and everyone turn on your camera. I am not going to repeat it once again and again. Please don't waste your time and my time as well. And अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, मेरा भी मत कीजिए, और क्लास को अच्छे से चलने दीजिए, ठीक है। कैमरा को ऑन रखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। ओके, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें, ये दोनों जो मैंने आपको समझा दिया, तो मुझे अब जो मैं समझा रही हूँ ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कैसे। हियर आई एम जस्ट मेकिंग अ टेबल, एक टेबल बना रही हूँ, देखो ये ऐसा एक टेबल, दिस इज अ टेबल। हियर वी आर बेसिकली मेकिंग इट इन द वे, I am just putting the rapid scheming strategy, just put rapid in front of scheming strategy. Okay, and in the second one there is a rapid penetration strategy. Okay, here the slow scheming strategy, and slow scheming strategy triple S, and यहाँ पर slow penetration strategy. So here we are going to put the rapid in front of the scheming strategy. So I am going to put the slow in the front of scheming strategy. Here it is rapid penetration strategy and slow penetration strategy. Okay. So here I am going to put high because यहाँ पर दोनों situation high का है, यहाँ पर दोनों जो situation है slow है यानी low है आपका, यहाँ पर आपका high और यहाँ पर आपका low. अब ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बनाया है। जो पहला सिचुएशन है, पहला सिचुएशन देखिए, हमने यहाँ पर प्रमोशन को लिया है और यहाँ हमने प्राइस को लिया है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर प्रमोशन है, प्रमोशन, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं समझाऊंगी अच्छे से आप लोगों को। फर्स्ट जो है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज द सिचुएशन, दिस वन इज द फर्स्ट सिचुएशन। फिर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आप प्रमोशन भी क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, और यहाँ प्राइस भी प्रोडक्ट का क्या है, हाई है। तो दिस इज रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। जब ये स्ट्रैटेजी तब ये इंट्रोडक्शन स्टेज में यूज होगा, यानी कि जब प्रोडक्ट जो, एक तो आपके क्लास के बच्चे आने बंद नहीं होते हैं, एक मिनट। Okay, so the first point is rapid scheming strategy. Here what we are doing, here we are putting the price of the product high, as well as we are basically using the high promotional strategy. यहाँ मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन भी कर रहे हैं और यहाँ पर हम ज्यादा प्राइस भी रख रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, हाई प्राइस भी रख रहे हैं और हाई प्रमोशन भी कर रहे हैं। अगर हम प्रमोशन हाई करेंगे तो इट इज हाई एक्सपेंस और लो एक्सपेंस, इट इज हाई एक्सपेंस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप जो है वो हाई एक्सपेंस, ज्यादा पैसा, मतलब प्रमोशन भी बहुत ज्यादा हाई कर रहे हो, प्रोडक्ट का प्राइस भी आपने हाई रखा है। इसका रीजन क्या है, इस तरीके का सिचुएशन आप क्यों क्रिएट करते हैं? इसका रीजन है, द पर्पस ऑफ हाई प्राइस इज टू रिकवर द प्रॉफिट पर यूनिट, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हम अर्न कर सके, ये इसका पहला रीजन है इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज करना। ये इंट्रोडक्टरी स्टेज में हो रहा है, याद रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तब आप ये तरीकों को, इन सारे ऑप्शन में से कुछ चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में आप हाई प्रमोशन भी कर रहे हैं, यानी ज्यादा एक्सपेंस प्रमोशन में भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट का भी प्राइस आपने हाई रखा है। क्यों रखा है प्रोडक्ट का प्राइस हाई? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट को क्या करना है, अर्न करना है, ठीक है।
यहाँ पर इनका जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है ये कहीं ना कहीं प्रीमियम कंज्यूमर्स को कन्विंस करता है। प्रीमियम कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो हाई प्राइस पर भी प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रीमियम कंज्यूमर्स आर दूस कंज्यूमर्स हु आर रेडी टू पे हाई प्राइस फॉर द यूनिक एंड डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, यानी जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं जब उनको यूनिक और अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इनको प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, इनको सिर्फ प्रोडक्ट मिल जाए, बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए, इनका कंसर्न इसके लिए होता है। So that is basically happened in this stage where there is a high promotional expense, there is a high price of the product. The main reason behind using such kind of a strategy is for more and more profit earn karna, and they are basically here to convince the premium consumer. They are not focusing on every consumer, but here they are focusing on those consumers who are ready to purchase a product of high price. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखने की बात है कि इनको क्रीम, स्किमिंग का मतलब पता है क्या होता है, टू ऑब्टेन क्रीम। तो यहाँ पर इनको वैसे ही कंज्यूमर्स चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए इनके प्रोडक्ट के लिए रेडी हो। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट सिचुएशन हुआ रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दुर्गेश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सूरज, दिस पॉइंट इज Yes, क्लियर टू ma'am. ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. मैम एक बार समझा दीजिएगा मैम। मैम एक बार और रिपीट से। हाँ, okay. So the first one, what I am telling you that I told you in the earlier part, जब मैंने आपको PLC करवाया था तो मैंने आप लोग को एक बात बोला था कि प्रोडक्ट का प्राइस हम हाई भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस हम लो भी रख सकते हैं, बट मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं किया था कि क्यों और क्या रीजन है। तो देखो ये तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक टेबल है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, प्राइस और प्रमोशन से रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी है जिसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेज में यूज करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हो, आपका जो भी एम होगा, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा आपकी कंपनी का, उस हिसाब से। तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी कहता है कि यहाँ पर देखो ये H का मतलब हाई है, इस L का मतलब लो, यहाँ हाई एंड यहाँ लो। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक कहता है कि आप प्रमोशनल एक्सपेंस भी आपका क्या होगा, हाई होगा, आपका प्राइस पर प्रोडक्ट भी क्या होगा, हाई होगा। और ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो हो वो क्या हो, अर्न हो, यानी एक बार में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। और इनका फोकस ना हर एक कंज्यूमर के लिए नहीं होगा, इनका फोकस कुछ टारगेट कंज्यूमर पे होगा। ये बेसिकली वो क्रीम चाहते हैं मार्केट से, जो नहीं होता क्रीम क्रीम पढ़ लो, इंपॉर्टेंट, तो इनके लिए बस तो प्रीमियम कंज्यूमर्स ही मैटर करेंगे, वैसे कंज्यूमर्स जो हाई प्राइस देने के लिए प्रोडक्ट का इजीली रेडी हो। जो प्रीमियम कंज्यूमर्स होते हैं दे आर बेसिकली परचेजिंग द प्रोडक्ट एट हाई प्राइस बिकॉज दे वांट प्रोडक्ट ओनली। उनको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है, उसके प्राइस से लेना देना ही होता है। वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्राइस की तरफ उनका उतना कंसर्न नहीं होता है। लेकिन आज भी अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या फिर मिडिल स्टेटस की बात करें तो वो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं। पुअर पीपल आर आल्सो प्राइस सेंसिटिव बिकॉज दे हैव टू पे द मनी एंड दे आर अर्निंग इट, मतलब ऑब्वियसली उनके पास उतना अफोर्डेबिलिटी रेट नहीं है, उनका अच्छा नहीं है बहुत। तो यहाँ पर ये प्रीमियम कंज्यूमर्स जो होंगे वो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में हम उनके ऊपर टारगेट करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है वो बेसिकली हम प्रीमियम कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? अब हाई प्रमोशनल एक्सपेंस, हाई प्राइस पर प्रोडक्ट। So this is the situation, first situation, rapid scheming strategy। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी सेंस देखते हैं इस assumption का। इस assumption का मतलब ये कंपनी या तो ये यूज करेगी या तो ये यूज करेगी वाला सिचुएशन है, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई यूज करेगी। तो इस फर्स्ट वाले का assumption जो है वो क्या है कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हम क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर हम हाई प्रमोशन भी क्यों कर रहे हैं? भैया हमने हाई प्रमोशन क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई प्रमोशन? बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे मार्केट इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ना हो, क्योंकि चूंकि नया प्रोडक्ट है, चाहे वो भले प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन अवेयरनेस तो लोगों के बीच में जनरेट करना है ना।
तो या तो यहाँ पर लोगों के बीच में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वी आर वेरी मच रिलाई ऑन द प्रमोशन। आर यू एबल टू गेट माई वॉइस? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर या तो हमने इसीलिए इसको यूज किया आरएसएस को, बिकॉज यहाँ पर आपका मेजर पार्ट जो मार्केट का है, दैट इज स्टिल अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, so we are totally dependent on the high promotion. And second one is consumers are ready to pay the asking price. वही मैंने बोला कि यहाँ वैसे लोग आपको मिलेंगे, वैसे consumers आपको मिलेंगे जो आपके प्राइस को देने के लिए रेडी हैं. They are not asking that why you are taking such a high price, but they are ready to give you the price of that. And third situation ये है कि there is a possibility of a competition and firm want to build up the brand preference. So what the mentality of the people इन इंडिया क्या मेंटालिटी होता है कंज्यूमर्स का कि जितना अच्छा ज्यादा प्राइस देंगे उतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना. वी आर गिविंग द प्रेफरेंसेस फॉर दैट. तो आइदर या तो आरएसएस की यूटिलाइजेशन इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लीजिए हमने लो प्राइस में प्रोडक्ट को हम लेकर आए और मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में सब आपके प्रोडक्ट को यही सोचेगा कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. So for maintaining the brand preferences and the people will start recognizing your brand as compared to the competitors, we can use this strategy RSS. I guess RSS से आप लोगों को clear हो जाएगा. RSS Rapid Scheming Strategy. Clear हो गया? और या तो एक और सिचुएशन है आरएसएस का जब आपका मार्केट बहुत ही लिमिटेड होता है. मार्केट लिमिटेड तब होता है जब हम कुछ ही कस्टमर पे टारगेट करते हैं. तो या तो आपका मार्केट लिमिटेड होगा तो आप आरएसएस को यूज कर लीजिए, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं. या तो आपके कंज्यूमर्स प्रीमियम कंज्यूमर्स है, इनको कोई प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तब आप आरएसएस यूज कर सकते हैं. या तो फिर आपका मार्केट में बहुत लोगों को अवेयरनेस है नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब आप आरएसएस को यूज कर सकते हो. या फिर आप ब्रांड प्रेफरेंसेस बिल्ड करना चाहते हो, तब आप आरएसएस को यूज कर सकते हो. सो दिस assumption कैन बी यूज्ड इन दीज 4 कंडीशंस. सो आई गेस दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, राइट अंडर दिस लिखिए, सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द इंट्रोडक्शन स्टेज. मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द इंट्रोडक्शन स्टेज. Marketing strategy for the introduction stage. Marketing strategy for the introduction stage. Okay. So in the first situation, that is the RSS, rapid scheming strategy. Right under this, RSS में लिखिए, पहले तो ये टेबल बना लेना, तुम लोग टेबल देख लो, बना लेना सब. ऊपर में यहाँ लिखो पी, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ध्यान से लिखिएगा. पी लिखिए प्रमोशन के लिए, यहाँ पर प्रमोशन, ऊपर में लिखिए प्रमोशन, यहाँ पर लिखिए प्राइस, यहाँ लिखिए प्रमोशन, यहाँ लिखिए प्राइस. राइट प्रमोशन हियर, राइट प्राइस हियर. And I just want to tell you all, whoever is basically always late in the classroom, remember one thing, जिस दिन भी मुझे समझ आ गया कि कितने दिन से आप लोग लेट हो रहे हो, 1 महीने का अटेंडेंस आगे का भूल जाना. मैं उस बच्चे का अटेंडेंस नहीं दूंगी. मेरे क्लास में लेट आने की सोचो भी मत. 12 बजे का मतलब 12 बजे होता है, ठीक है. सो हियर यू कैन राइट प्रमोशन, हियर यू कैन राइट प्राइस, ठीक है. इन द फोर्थ, हियर व्हाट यू कैन राइट, हियर राइट हाई, H for high, L for low, and here you can write high and L, low. So in the horizontal you have to write the promotion, high and low. In the vertical you can write here price, high and low. ठीक है. What will be written in the first block, that is rapid scheming strategy, RSS, rapid scheming strategy. Always remember, whenever there you will see the scheming, always remember this, that the price of the product will be high. Scheming का मतलब ही होता है कि प्राइस प्रोडक्ट का हाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है. तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी यहाँ फर्स्ट ब्लॉक में लिखिए. सेकेंड ब्लॉक में लिखिए SSS, ट्रिपल S, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, राइट, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. And in the third block, write rapid penetration strategy, RPS,
आरपीएस आई गेस आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा, इट इज आरएसएस, ठीक है, आरएसएस तो सबको याद होगा मुझे लगता है, दिस वन Yes, इज ma'am. ट्रिपल एस एंड दिस वन इज आरपीएस, ठीक है। अब ये हो गया एसपीएस, स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। सो यू ऑल ऑफ यू मेड दिस टेबल फर्स्ट, सबने टेबल बना लिया ये? Yes, ma'am. ओके, मैम आरपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिएगा दोनों का। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी एंड रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। सो आई गेस दिस टेबल इज ऑलरेडी, यू ऑल मेड दिस टेबल, बना लिया टेबल सब लोगों ने? ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, सो राइट, लिखिए पहला, ये आपका इंट्रोडक्शन स्टेज का, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन स्टेज में बता रही हूँ अभी मैं, अभी ग्रोथ और मैच्योरिटी तक पहुंची नहीं हूँ। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द इंट्रोडक्शन स्टेज। ऊपर लिख लिया सबने टॉपिक, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द इंट्रोडक्शन स्टेज, जस्ट मेक Yes, दिस टेबल। नाउ जस्ट टेक द फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस फर्स्ट पॉइंट वो क्या है, दैट इज RSS, rapid scheming strategy. This one is the first point, rapid scheming strategy. So in the rapid scheming strategy, what will be happen? You can write in shortcut in this way. देखिए यहाँ लिखिएगा हाई प्राइस होगा प्रोडक्ट का और हाई एक्सपेंस होगा प्रमोशन पे। दिस इज द सिचुएशन एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखिए assumptions, यहाँ पर ये सारे कंडीशन की वजह से हम ये चीजों को, हम ये आपका हाई प्राइस और हाई एक्सपेंस कर रहे हैं प्रमोशन पे। पहला कंडीशन क्या होगा इसका, क्यों इसको आरएसएस को हम यूज कर सकते हैं? पहला, बिकॉज मेजर पार्ट जो है आपके मार्केट का, मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट, लिखिए मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट, मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट, निधि कुमारी व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, major part of market, major part of market is not aware of the product, major part of market is not aware of the product, major part of market is not aware of the product, यानी कि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तब हम यहाँ पर आरएसएस को यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या लिखिए, यहाँ पर लिखिए प्रीमियम कंज्यूमर, प्रीमियम कंज्यूमर और आगे लिखिए लेस प्राइस sensitive. The second condition where we can use RSS, that is for the premium consumers, those consumers who is not basically asking about the price of the product, who is ready to pay whatever amount is basically asked by the company. So this one is the second one. Price premium consumers, they are less price sensitive. Next, the third one is, third में लिखिए अब फॉर बिल्डिंग अप द ब्रांड प्रेफरेंस, यानी ब्रांड को प्रेफर करें लोग, तो ब्रांड प्रेफरेंस के लिए ब्रांड को रिकॉग्नाइज करे और कंपटीशन और जो फॉर्म जो आसपास कंपटीशन है उसके बीच में आपके ब्रांड को लोग रिकॉग्नाइज करे और क्या 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 कह सकते हैं, पहचाने। इसके लिए ब्रांड प्रेफरेंस बिल्ड करने के लिए आप आरएसएस को यूज कर सकते हो, आरएसएस को यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, ब्रांड प्रेफरेंस के लिए। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है जब आप आरएसएस को यूज कर सकते हो, व्हेन द मार्केट इज लिमिटेड इन साइज, जब मार्केट लिमिटेड साइज में होगा, मार्केट इज इन लिमिटेड साइज, तब आप वैसे सिचुएशन में भी आरएसएस को यूज कर सकते हो। यानी कि बहुत बड़ा जब आपका मार्केट नहीं है, बहुत लेस पीपल हैं, बहुत टारगेट जो आप जिस पे कर रहे हो दैट इज वेरी a few people, so in that situation we can use the RSS strategy. So I guess how we are basically need the strategy for the price and promotion, that is clear for to all of you in the introduction stage. Clear Yes, to ma'am. all Yes, of you ma'am. in the introduction stage. Yes, The ma'am. RSS is clear. When we are going to use the RSS? Clear? Yes, Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, let's move toward the next one, that is slow scheming strategy, triple S. ट्रिपल एस, सी आई एम गोइंग इन अ हॉरिजेंटल वे। देखिए मैं हॉरिजेंटली देख रही हूँ कॉलम के हिसाब से। देखिए पहले हमने ये फर्स्ट सिचुएशन कर लिया, दिस वन इज द फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ दिस वन इज द सेकेंड वन। अब सेकेंड वाला सिचुएशन क्या होगा, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। ये सूरज मैम आपका आवाज कट कट का आ रहा है मैम इधर। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है, आवाज सबको क्लियर आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आवाज आ रहा है मैम, अच्छा है। नो आवाज मैम। क्लियर,
एक मिनट, आवाज क्लियर अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके यहाँ या तो नेटवर्क इशू है बेटा, आप पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आई थिंक बहुत बच्चों को क्लियर आ रही है आवाज, और अगर ऐसा कुछ है कि मेजोरिटी बच्चों को अनक्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, ट्रिपल एस। सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट, द सेकंड ब्लॉक, सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं। What will happen in the slow skimming strategy? Here we are going to put the product price high, यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो हाई ही होगा। ठीक है, एक मिनट मैं क्लियर कर रही हूँ सारे ड्राइंग्स को। तो इन द सेकेंड सिचुएशन ट्रिपल एस, आपका जो स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो तो हाई होगा। टेबल में देखो सब लोग, दिख रहा है ना, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, हाई है। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंस है वो क्या है, लो है। क्या है, लो है। तो हियर द सिचुएशन, प्रोडक्ट का प्राइस हाई, प्रमोशनल एक्सपेंसेस लो। ठीक है, why such kind of strategy is adopted? ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी होगा इसमें प्रोडक्ट एट हाई प्राइस पे इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रमोशन लो पे होगा। पर्पस होगा हाई प्राइस का कि जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट को अर्न कर ले, वही सेम रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पर भी उनका मकसद यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर ले, कमा ले। ठीक है, और लो प्रमोशन इसलिए होगा क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस को हम लो रखना चाहते हैं, यानी जो मार्केट पे खर्च करना है ना वो हम लो रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है, मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं करना है। ठीक है, तो हेयर वी वांट मैक्सिमम प्रॉफिट एट द लो मार्केट एक्सपेंस, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और मार्केट एक्सपेंस भी हम कम से कम करें। अब ये स्ट्रैटेजी कब यूज हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस एजम्पशंस when these strategy SSS can be used, या triple S can be used? So the first one is when market is in limited in size, the same situation like the rapid skimming strategy। जब आपका मार्केट लिमिटेड साइज का है तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई रखोगे और प्रमोशन कम करोगे। तो यू कैन डू दिस दैट थिंग इन दिस सिचुएशन एज वेल। मतलब जब मार्केट का जो साइज है दैट इज लिमिटेड, एंड सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी और स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी का जो मेजर डिफरेंस यही है कि जो कंज्यूमर होंगे दे आर रेडी टू पे, दे आर बेसिकली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर वो प्रोडक्ट के बारे में पहले से इनको जानकारी होगी, यानी दे आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। अच्छा, हम लोग क्यों करते हैं प्रमोशन? कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाई वी आर डूइंग द प्रमोशन? व्हाई वी आर डूइंग प्रमोशन? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी दैट व्हाई द कंपनी इज डूइंग प्रमोशन? यस अरमान, यस अरमान। यस मैम, प्रमोशन इसलिए करते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में तो पहले उसका बताएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है मैम, और प्रमोशन, ओके गुड गुड, बट इन द शॉर्टकट आई जस्ट वांट टू टेल यू, नाउ द 4 पीस कॉन्सेप्ट जो हम लोग करते हैं ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड द 4 C's। अब ये 4 C's में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं अब चलिए इसके बारे में बात बताऊंगी, बट प्रमोशन का मतलब एक तरीके से होता है कम्युनिकेशन, एंड व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर टू अवेयर देम अबाउट द प्रोडक्ट। मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, इसके एक मिनट, इसके लिए हम क्या करते हैं, अवेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जब कंज्यूमर को पहले से ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर हम एक्सट्रीम और एग्रेसिव प्रमोशन क्यों करेंगे, हम क्यों प्रमोशन पे पैसा बर्बाद करेंगे कंपनी का, है ना? सो हियर इन दिस सिचुएशन ट्रिपल एस, द फर्स्ट वन इज दैट व्हेन द मार्केट इज वेरी लिमिटेड, मार्केट बहुत लिमिटेड है, तो हम ट्रिपल एस को यूज कर सकते हैं। या तो कंज्यूमर जो है उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट के बारे में, दे आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, so in that situation we are putting the price of the product high, but here promotion expenses we are basically use very low, मतलब बहुत कम हम यहाँ पर एक्सपेंस करेंगे प्रमोशन के लिए क्योंकि consumers are aware। now the third condition, you all are writing or not? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Now the third condition under this is consumers are ready to pay high price. Same situation, the people are not price sensitive. So people are premium consumers, they are ready to pay the high price.
and the next one is there is very less possibility of the competition. So what I can tell you that here जो 2 पॉइंट मैंने पहले वाले सिचुएशन में बताया RSS में, वो यहाँ पर 2 सिचुएशन तो टैली कर गया, जो लिमिटेड मार्केट वाला और आपका प्रीमियम कंज्यूमर वाला, लेकिन 2 चीजें डिफरेंस हो गई। वहां पर क्या था, इंटेंस कंपटीशन था। जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो वहां पर किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस दिलवाना दैट इज डिफिकल्ट। सो इन दैट सिचुएशन वी वर डूइंग दैट RSS वाला सीन, बट हियर यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है दैट इज वेरी लेस। कंपटीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से अगर आप कम भी प्रमोशन करेंगे ना, तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी एंड प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रांड ओनली, ठीक है। सो हियर व्हाट आर द सिचुएशन फॉर द सेकंड वन, दैट इज स्लो scheming strategy. The product price will be high, the promotion expense is low. The assumption for this slow scheming strategy is the market is very limited. Second one is the consumer are aware about your product. Third condition is the people are ready to pay high price of the product. And the fourth one is there is a less possibility of the competition, यानी between the firm. यहाँ पर competition की possibility बहुत कम है। So I guess this second point is also clear. सेकेंड बॉक्स जो था मैंने बताया, ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड ब्लॉक। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड ब्लॉक। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड ब्लॉक। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? दैट इज रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये बॉक्स में आपका यहाँ पर रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। So this one is the next one. अगर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या सिचुएशन हो रहा है आपका, कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है दैट इज लो। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? लो लो प्रोडक्ट का प्राइस लो है, ठीक है। और प्रमोशन का एक्सपेंस क्या है? हाई हाई रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यानी आरपीएस में क्या सिचुएशन है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा दैट इज लो। प्रोडक्ट प्राइस इज लो एंड द प्रमोशन एक्सपेंस इज हाई। प्रमोशन एक्सपेंस क्या है? हाई है, ठीक है। अब ये क्यों स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जब स्ट्रैटेजी हम लॉन्च करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस हमने लो रखा है, कम रखा है, लेकिन प्रमोशन हम बहुत कर रहे हैं, प्रमोशन एक्सपेंस हम बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर जो पर्पस होता है यहाँ पर आरपीएस स्ट्रैटेजी को यूज करने का, दैट वी आर एबल टू गेट मोर एंड मोर मार्केट शेयर, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर मिले। सी, कंज्यूमर्स आर basically in India we can say that there is a diversification in the consumers. Everyone is not similar. True? सही बात है। हर एक कंज्यूमर सेम है क्या? उनका डिमांड सेम है? उनका बिहेवियर क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इंडिया का सिर्फ आपको पॉपुलेशन के बारे में बताऊं, तो इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन द मिडिल, दे आर नोन एज मिडिल क्लास फैमिली। Why? Because their earning is not very much high. They are basically sustaining their life by getting the basic things and they are able to do it, right? अब यहाँ पर जब आपकी कंट्री में इस तरीके का सिचुएशन है कि आपके कंज्यूमर्स जो हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स गरीब भी हैं, बहुत रेयर कंज्यूमर्स जो हैं वो रिच हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप मार्केट शेयर तो आपको तभी ना मिलेगा जब आपकी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट परचेज करे। सिर्फ रिच तो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट सम पुअर पीपल विल परचेज द प्रोडक्ट। सो द मेन मेथड of using this kind of strategy is to increase the market share, to increase the customer base. हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को अपना एक्सपैंड कर पाए, इंक्रीज कर पाए, और ये तभी पॉसिबल है जब कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन सारे कंज्यूमर तो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पीपल होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं। आई एम ऑल्सो प्राइस सेंसिटिव एंड सो मेनी ऑफ यू आर प्राइस सेंसिटिव, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोडक्ट का प्राइस लो रखेंगे ताकि हमें हर एक
टाइप का, हर एक स्टेटस, हर एक कैटेगरी के मुझे हम लोगों को लोग मिले, कंज्यूमर्स मिले जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर पाए. सो द मेन एम बिहाइंड यूजिंग द आरपीएस दैट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को हम इंक्रीज कर पाए. यहाँ पर मार्केटर्स जो है दे विल ट्राई, जो मार्केटर होगा वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा एक्सपैंड करने का मार्केट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बायर्स, यानी नंबर ऑफ बायर्स को इंक्रीज करना, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट बट दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग market share. But in the scheming what we saw that they are basically focusing on those consumers who are less price sensitive. They are not thinking that what price we need to pay, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh. They are not thinking about the price, but they are ready to pay the amount for that product. So that has happened in the scheming strategy. In the penetration pricing strategy, what we see that the company is not concerned toward the earning profit. They are not thinking कि हमें profit earn करें. No, they want to expand their market by increasing the number of buyers. So I guess this RPS is clear to all of you. Yes, ma'am. समझ में आया? Now what are the condition? अब ये assumptions यहाँ पे लेते हैं कि ये कब हम use कर सकते हैं, when we can use this RPS, rapid price penetration strategy, when we can use. The first is when the market is large. Market is not limited but the market जो है वो बहुत large है, बहुत बड़ा है. और ये कौन से प्रोडक्ट के लिए मार्केट लार्ज हो सकता है? कन्वीनियंस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो होता है लगभग इंडिया में हर एक कोई परचेज करता है. ट्रू और नॉट? सही बात है? यस मैम. है ना? तो यहाँ पर आपका जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा लार्ज है. फर्स्ट assumption is that कि जब आपका मार्केट बहुत लार्ज है तो ऐसे केस में अगर आपने हाई प्राइस से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आप जो है वो मार्केट शेयर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. तो जब आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना है तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज आरपीएस. So the first assumption is market is large. Now the second condition is what? Second condition है the buyers are price sensitive. जो परचेजर हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दे आर प्राइस सेंसिटिव. दे आर इफेक्टेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस, यानी प्राइस बढ़ाने और घटाने से उनके ऊपर इफेक्ट होता है. आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु आर वेटिंग फॉर द बिग बिलियन डे, के फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे आएगा तब जाके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदेंगे. सही बात है या नहीं? Yes, Yes, ma'am. So these people are price sensitive, right? सही है ना? बहुत Yes, सारे लोग ma'am. एप्पल फोन स्टार्टिंग में नहीं खरीदते हैं जब वो लॉन्च होता है. Why? Because it is launching at the rate of 1.5 लाख रुपए का फोन है वो. But once Yeah. another model come, जैसे दूसरा मॉडल आता है वैसे ही वो पहले वाले मॉडल क्या होता है खरीद लेते हैं. Because why? Because of the price. They are price sensitive. They cannot able to afford such kind of expensive mobile phone, right? तो यहाँ Yes. पर आपका पहला कंडीशन है दैट मार्केट जो है वो लार्ज है, और सेकंड है कि द पीपल और जो बायर्स और कंज्यूमर्स दे आर प्राइस सेंसिटिव. दे आर इफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द प्राइस. So I guess this point is also clear to all of you. यस मैम. Now the third condition क्या है? Third one is there is a strong potential for the competition. जब यहाँ पर competition बहुत ज्यादा high है. देखो जब कंपटीशन हाई है तो हमें पता है कि अगर हमने थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइस लो नहीं रखा तो शायद हो सकता है दिक्कत हो, और हो सकता है वैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो. तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है किस चीज का? कंपटीशन का. उसके अलावा यहाँ पर तो हम प्रमोशन भी क्या कर रहे हैं? हाई कर रहे हैं या लो कर रहे हैं? प्रमोशनल एक्सपेंस हाई कर रहे हैं. हाई कर रहे हैं. तो यहाँ Yes, एक और एजम्पशन लीजिए. देखिए पहला तो मार्केट लार्ज है, पीपल प्राइस सेंसिटिव है, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, बहुत पोटेंशियल हाई है कॉम्पिटिटर्स का. उसके अलावा आपका जो फोर्थ कंडीशन है लिखिए इसमें. फोर्थ कंडीशन में क्या होगा कि द मार्केट इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. जो मार्केट है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं है. द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्विंस्ड. इनको आपको इन्फॉर्म करना है और इनको आपको कन्विंस करना है. So in that situation, definitely we required high promotional expenses. We need to do the aggressive promotional campaigning. We have to do. True or not? सही बात है?
यस मैम। ऐसे Yes, ma'am. कंडीशन में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना है, तो क्योंकि लोग नहीं जानते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो पीपल आर वेरी लेस अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्विंस्ड। दिस इज द फोर्थ सिचुएशन अंडर द RPS। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? कौन बच्चा है? अरमान मैम। Arman, I told you multiple times why you're not using that thing. Why you're not Sorry. raising your hand and you're interrupting. सॉरी मैम। Okay, tell me what problem is there? मैम थर्ड जो बताया था इसमें क्या था सेंसिटिव के बाद में? Second, the first था that is कि मार्केट बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा। सेकेंड था कि लोग जो होंगे, द पीपल और जो बायर्स और जो कंज्यूमर होंगे, वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होंगे। प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब लोगों को ना प्राइस इंक्रीज होने और डिक्रीज होने से इफेक्ट पड़े लोगों पे, ठीक है, तो वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर गोल्ड का रेट अगर 50,000 चल रहा है एग्जाम्पल में, और जैसे ही वो 45 पे आएगा, दैट इज इफेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दे विल गो एंड दे विल परचेज द ज्वेलरी। बट when the price of the product will be high, 55,000 हो जाएगा, तो लोगों का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्राइस सेंसिटिव। जब मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से हमारा रिएक्शन हो, हमारा रिस्पॉन्स हो, तो इसको कहते हैं प्राइस सेंसिटिव। आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर हो गया? हाँ। So the second point is price sensitive. The third one is when the competition is very high, and the fourth one is when the consumers are not aware about your product. जब प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को नहीं पता है, तो they need to be informed and convinced. So here we are using two things, ना? Here we are setting the price of the product low, but we are doing promotional expenses. We are basically doing aggressive promotion. Why we are doing so? Because for communicating to the people, to communicating to the consumer. Okay. Now the next one is, now the next assumption is, अब यहाँ पर अब next assumption क्या है कि क्यों हम प्रोडक्ट का प्राइस लो रखेंगे और प्रमोशनल एक्सपेंस हाई रखेंगे। तो ये चार कंडीशन बताया। फिफ्थ कंडीशन है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू more production. So here we can say in the case of the RPS, those products are used which are convenience product or the product which is demanded by majority of the people. यहाँ पर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा लो कॉस्ट पे, देन वी आर एबल टू रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जब पर प्रोडक्ट का कॉस्ट, पर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि डिमांड, हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो जब हम प्रोडक्शन हाई करेंगे तो हम ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच करेंगे। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम रीच कर जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप ही लो हो जाएगा ना, इसीलिए हम प्रोडक्ट का कॉस्ट लो भी रख सकते हैं। सो द फिफ्थ कंडीशन इज पर यूनिट cost can be reduced because of the economies of scale, or we can say because of the more and more production. Yes, but there is one thing I just want to tell you. Yes, the profit can be low at the introduction stage. यहाँ लेकिन introduction stage में आपका profit low ही रहेगा जब हम RPS को use करेंगे, क्योंकि price हमने बहुत ज्यादा high रखा ही नहीं है product का। So the fifth condition is the per unit cost can be reduced because of the production is high, because of the demand can be high. I am not saying that it can be high, but यहाँ production हम बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, so I guess this third block is also clear to all of you. Third point जो है, third इसमें RPS is clear to all of you. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear हो गया Yes, सबको? ma'am. Okay, okay. Now the next situation is, तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना? मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो मैम, आ समझ आ रहा है ना? मैम आ रहा है। ओके ओके ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ ब्लॉक। फोर्थ ब्लॉक की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट वन इज द फोर्थ ब्लॉक? क्या है? SPF. SP Penetration strategy. SPS. Here it is the slow penetration strategy, right? So what will happen in this situation? In this situation where we are putting the product price low, the product का price भी low होगा, और यहाँ पर आपका promotional जो expense होगा वो भी क्या होगा? low होगा। मतलब कि हम expense भी कम करेंगे और हम product का price भी क्या रखेंगे? low रखेंगे। I guess this point is clear कि यहाँ situation में क्या होगा?
the product price will be low and even the promotional expense which is done by the company, that is also low. So this point is clear. यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया सबको क्या होगा सिचुएशन. ओके, अब यहाँ पर हम ये ऐसा क्यों करेंगे? व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस? बिकॉज हियर वी वांट प्रॉफिट. यहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा प्रमोशन करेंगे तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका मेजॉरिटी पार्ट तो प्रमोशन में चला जाएगा. तो हमें मार्केट भी चाहिए. यहाँ पर दो कंडीशन में ये जो हम तब यूज करेंगे, ये वाला आपका स्कीम स्ट्रैटेजी तब हम यूज करेंगे जब हमें मार्केट शेयर भी चाहिए और जब हमें प्रॉफिट भी चाहिए. यानी अर्लियर वाले में क्या था कि सिर्फ मार्केट शेयर की बात हो रही थी, वहां प्रॉफिट की बात नहीं हो रही थी. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मार्केट शेयर भी चाहिए और हमें यहाँ प्रॉफिट भी चाहिए. तो जब मार्केट शेयर चाहिए तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्राइस को हमें क्या रखना पड़ेगा? लो ही रखना पड़ेगा, तभी तो मार्केट शेयर ग्रैब कर पाएंगे. बट यहाँ पर प्रॉफिट भी चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रमोशनल एक्सपेंस जो है वो क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे, कम कर देंगे, लेस कर देंगे, लो कर देंगे. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? What is the situation in this? Here we are going to put the price of the product that will be low, as well as promotional expense is also low. Why? Because there is a two objective behind using such kind of pricing marketing strategy in introductory stage. That is that we want more and more market share as well as we want profit. हमें profit भी चाहिए और market share भी चाहिए, इसीलिए we are going to use the slow penetration strategy. Okay, what are the assumptions of this? What can be the assumption? क्या situation होगा यहाँ पर? पहला कि मार्केट लार्ज होगा. पेनिट्रेशन में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मार्केट लिमिटेड नहीं होगा, मार्केट क्या होगा? लार्ज होगा. जब आपका मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, मार्केट बहुत लार्ज है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Okay. So what is the assumption of this strategy when the market is very large? बहुत ज़्यादा market बड़ा है. Assumption मतलब तब हम use करेंगे इसको. What we are assuming that when we can use SPS. So when the market is very large, the second condition is market is aware about the product. Here in the previous one, what has happened? The consumers are not aware about the product. So in that situation, we have to totally based on the communication, or we can say we have to based on the information method, and that's why we were dependent on the promotion. But here the people are the buyers हैं, they are aware about your product. तो लोग यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी है. ठीक है. और जो कंपटीशन है दैट इज आल्सो वेरी लो. जब कंपटीशन कम है तो यहाँ पर आपको प्रमोशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मार्केट शेयर बहुत ज्यादा चाहिए इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस भी लो है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? पहला तो मार्केट बहुत लार्ज है. सेकंड है कि आपके जो बायर्स हैं उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, अवेयरनेस है. थर्ड सिचुएशन क्या है? यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है दैट इज वेरी लो. So in the case of when the competition is low, we can reduce the price on the promotional expense. We can do the cost cutting. हम promotional expenses को reduce कर सकते हैं. Now next, what can be the assumption? Next assumption क्या है? जब लोग जो होंगे they are price sensitive. The people are क्या है वो? Price sensitive है. The people are price sensitive. ठीक है. But they are not as such dependent on the promotion. The people are price sensitive in that situation, so we are going to use the SPS as well in this situation. अब यहाँ पर भी दो चीजें आपकी मैच कर गई है. क्या क्या दो चीजें मैच कर गई है? पहला कि मार्केट लार्ज है. इससे पहले वाले सिचुएशन थर्ड ब्लॉक में भी सेम था कि मार्केट लार्ज है और प्राइस सेंसिटिव है लोग, तो वो आपके थर्ड ब्लॉक में भी था प्राइस सेंसिटिव है. लेकिन दो डिफरेंसेस आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर कंपटीशन लो है, लेकिन इससे पहले वाले सिचुएशन में कंपटीशन हाई था, और यहाँ पर आपके जो बायर्स हैं दे आर प्राइस सेंसिटिव. ठीक है. सॉरी, यस, they are knowledgeable about the product or they are aware about the product, but in the previous one they are not aware about the product. So here is two difference. So I guess all these four blocks is clear to all of you. What is the marketing strategy which can be used for the promotion and pricing in the introductory stage? That is clear to all of you? That is clear? Okay. Okay. So yes, who is going to explain all these four terms? Raise your hand.
Who is going? स्ट्रैटेजी हाई प्राइस और हाई एक्सपेंस रहता है मैम। एजम्पशन करता है, मेजर करता है पार्ट ऑफ द मार्केट इज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रीमियम कंज्यूमर अवेयर अति करेगा, बाय करेगा Okay. मैम। और ब्रांड परफॉर्मेंस रहेगा। मार्केट इज लिमिटेड प्रेसाइज। Okay. ठीक है। Okay, Arman, you told me about the first one. Okay. Yes, next one is Ankit. Yes, Ankit बताइए। सेकंड वाला आप बताइए, सेकंड ब्लॉक। मैम SSS सेकंड ब्लॉक है, स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। इसमें जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का मैम वो हाई होता है और प्रमोशन स्लो होता है मैम। व्हेन मार्केट इज लिमिटेड इन साइज, मार्केट जो होता है साइज में छोटा होता है, दैट्स व्हाई प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है। और मैम कंज्यूमर होते हैं वो प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अवेयर रहते हैं। और मैम यस मैम, हाँ बोलो बोलो मैम। और कंज्यूमर लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं बिकॉज दे आर फोकसिंग अपॉन देयर प्रोडक्ट, देयर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैम। वो हाँ बिल्कुल। मैम कंपटीशन कम रहता है मैम। Okay. Anything else you want to tell me about it? Very good. Okay, Ruchi, next third one. Ruchi, next third one. थर्ड पॉइंट है हमारा रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो लो होता है, प्रोडक्ट इज प्राइस लो। एंड सेकंड हो गया प्रमोशनल इज एक्सपेंस हाई। इसमें जो प्रमोशनल एक्सपेंस होता है वो हाई होता है और इसमें हमें मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इसके जो एजप्शंस होते हैं, फर्स्ट वन हो गया कि इसका जो मार्केट होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। व्हेन द मार्केट इज लार्ज, इसमें कन्वीनियंस जैसे कि एट वंस कन्वीनियंस प्रोडक्ट जैसे। एंड सेकंड हो गया द बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव इन जैसे दे आर इफेक्ट और इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस। एंड थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ द कंपटीशन। एंड फोर्थ हो गया द मार्केट इज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें अवेयर नहीं होता है। नीड टू बी इन्फॉर्म टू द कन्वेंस। हमें इन्फॉर्म एंड कन्वेंस करना जरूरी है। वी हैव टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर एंड वी हैव टू कन्वेंस देम टू परचेज द प्रोडक्ट। ओके, गुड रुचि। नेक्स्ट, यस वैष्णवी। Yes, ma'am. Vaishnavi, you can do one thing. You can elaborate each and every one. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, and everyone listen very carefully. जो भी बच्चे बता रहे हैं उनकी बातों को सुनिए आप लोग भी, क्योंकि मैंने तो बता दिया है, याद हो जाएंगी चीजें। Yes, Vaishnavi, tell me. यस मैम, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारा रैपिड स्किमिंग स्ट्रैटेजी। इसमें प्राइस भी हाई रहता है और प्रमोशन एक्सपेंस भी हाई रहता है। हम लोग रैपिड स्किमिंग स्ट्रैटेजी तब यूज कर सकते हैं जब हमारा मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर नहीं रहते हैं। मेनली इसमें प्रीमियर कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो लोग लेस प्राइस सेंसिटिव रहते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में, मतलब कैसे भी प्राइस में वो बाय करने के लिए रेडी रहते हैं, हाई प्राइस में भी। और मैम इसमें है कि हमारा ब्रांड प्रेफरेंस हमें बढ़ाना रहता है हमारे कॉम्पिटिटर्स से। और रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटेजी में हमारा मार्केट साइज जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा मैम स्लो स्किमिंग स्ट्रेटेजी। स्लो स्किमिंग स्ट्रेटेजी में हमारा प्राइस हाई रहता है बट प्रमोशनल एक्सपेंस जो रहता है वो लो रहता है। इसमें हम लोग हाई प्राइस इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि हम लोग मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न कर सकें। और लो मार्केट एक्सपेंस हमारा रहता है, इसलिए हमारा प्रमोशनल एक्सपेंस लो रहता है। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मैम जब हमारा मार्केट साइज लिमिटेड हो, कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, इसलिए हम प्रमोशनल एक्सपेंस ज्यादा नहीं करते हैं। Customers are ready to pay high price and there is a less possibility of competition. थर्ड है मैम ये रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में प्राइस लो रहता है और प्रमोशन एक्सपेंस हाई रहता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज द मार्केट शेयर and increase the number of buyers to expand the market. We can use this strategy when our market is large in size, the buyers are price sensitive, stronger high competition potential, customer are not aware about the product and need to be informed. वो हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर नहीं रहते हैं, हम लोग उनको इन्फॉर्म करना रहता है, इसलिए हमारा प्रमोशन एक्सपेंस जो रहता है वो हम हाई करते हैं। वेरी गुड। इसमें मैम पर यूनिट कॉस्ट जो रहता है रिड्यूस रहता है क्योंकि प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होता है इसमें।
एंड लास्ट स्ट्रैटेजी है मैम स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। इसमें हमारा प्राइस भी लो रहता है और प्रमोशनल एक्सपेंस भी लो रहता है, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना रहता है एंड मार्केट शेयर इंक्रीज करना रहता है। वी कैन यूज दिस अच्छा, एक स्ट्रैटेजी। बार बताओ, इससे पहले वाला जो आपका था, that was the rapid penetration strategy, right? Yes, so can you tell me that what is the difference between the RPS and the SSS? SPS. What is the one difference there is? कंपटीशन उसमें हाई रहता है मैम, और एसपीएस में कंपटीशन लो। Why the people will use? I'm not talking about assumption. See, in the case of the RPS, here we are basically only focused toward the market share. We are not thinking about to earning profit more and more. But in the case of the SPS, what the things are that we want market share to increase as well as we want profit. And how we can earn the profit? By reducing or cost cutting the promotional expenses, because that is one of the major expense of the company when they are basically doing the promotion, right? Vaishnavi? यस मैम। हाँ, चलिए आगे बताइए। एंड एसपीएस में हमारा कंपटीशन लो रहता है और पीपल जो रहते हैं वो प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, बट आर नॉट डिपेंड ऑन लार्ज promotional activities. Yes. So I guess all the points, all these blocks, the introductory में आपका introduction stage में what will be happen? I guess the point is clear to all of you, right? Yes. The point is clear to all of you. Anyone Yes, have any ma'am. doubt in any of the blocks, whatever we studied, any of the points? Raise your hand. Okay. So in the next class, we are going to understand about that what marketing strategy the company will be used when they are in the growth stage, when their product is in the growth stage, what kind of strategy is required to be made by the company. We are going to discuss this point in the next class. I guess every point is clear to all of you. The Yes, RSS ma'am. rapid Yes, ma'am. skimming strategy is clear. The next Yes. second one is the triple S, Rapid. the slow skimming strategy is clear to all of you. The third Yes. one Yes, is ma'am. the third one is RPS, rapid penetration strategy is clear, and the Yes, ma'am. last one is that is SPS. आपका क्या है? Slow penetration strategy. So I guess this point is clear to all of you, right? Okay. Yes. So see you all in the next class.